अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का प्रोग्राम जो मैं लेकर आई हूँ ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और ज़ाहिर है जो मेरे नाज़रीन देखने वाले हैं उनके लिए भी होगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है हेल्थ के बारे में और हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और जो मेरे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको भी मिले। तो आज उसी सिलसिले की एक कड़ी मैं अपने साथ लेकर आई हूँ और बहुत प्यारी गेस्ट हमारे साथ अरीबा शाह के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि अरीबा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन वुमेंस हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ एंड मेडिकेशन एजुकेशन। और अरीबा का तारुफ तो मैंने आपको छोटा मोटा करा दिया, लेकिन अरीबा ख़ुद अपने बारे में बताएंगी कि अरीबा क्या करती हैं और मेडिकल से इनका कैसे, मेडिकल प्रोफेशन जो इनका है उसके बारे में हमें अपने बारे में बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, हाउ आर यू? Walaikum assalam. I'm great. Thank you so much for having me. Thank you so much. Just tell about your journey to medical profession. Okay. Well, I'll start from the beginning. मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी. I've been in Canada since I was 5 though. और हम टोरंटो में ही आए थे. इधर ही मैं बड़ी हुई हूँ. I remember कि even grade 4 में मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे human body anatomy की बुक दी थी. Okay. तो मुझे याद नहीं है कि when did I get interested in this field, but I must have been young. Although my grandmother will tell you that it was all her idea. Okay. And so I went to my undergraduate at Western University in London, Ontario. Okay. And I did a Bachelor of Medical Sciences there. Okay. So it was already kind of on my track. I actually did an internship year as well. So something very different. I did environmental sciences internship. And then I worked for 2 years. Finally, I got into medical school at Queen's University. And I graduated recently in 2020. And now I'm doing my residency is in obstetrics and gynecology in Ottawa. Okay, wow, that's very nice. Acha, okay, what advice would you offer to someone who wants to be a doctor about pregnancy? Okay, so I would say, explore whether this is the right field for you, first of all. Medicine in general can be really busy, and a lot of people think, especially like desi communities में बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर बनो, लेकिन वैसे ये specialty और ये field हर किसी के लिए नहीं है. Exactly. Yeah, बहुत I think dedication होती है और perseverance भी. Like मैंने 2 दफ़ा apply किया था खुद और पहली दफ़ा मुझे कोई interviews नहीं मिले. Oh. Yeah, और दूसरी दफ़ा भी सिर्फ एक इंटरव्यू और वो भी क्वींस यूनिवर्सिटी का मुझे मिला था. And then I said, okay, I really want to go to med school, so I applied to Ireland. And after that I said, Ireland is too expensive, but I still sent in my application and I said, maybe I'll apply for nursing too, because my passion at the end of the day is healthcare and to be in a caring profession. Okay. So if someone wants to get into it, they really have to, keep persisting, of course. Okay. So are you a gynecologist? Yeah, so Yes, okay. in obstetrics and gynecology, yeah. Oh, okay, wow, that's great. Okay, just tell me one thing. A woman should talk to a doctor about her health before pregnancy? 100%, I would recommend that. Okay. And knowing what I know now after like the training that I've been doing, I would myself want to go to a physician to get everything checked out, make sure my body is ready for a pregnancy, and to set myself up for success. Okay, during pregnancy, all women have the same symptoms? So not necessarily. There's, कोई औरतें होती हैं जो उनके periods regular नहीं होते. Okay. So let's say someone doesn't have a period for 2 or 3 months. Is it just that they're skipping months, or is it that they actually are pregnant? So of course the first symptom is that you're not getting a period, and that one is going to be consistent for everyone. Okay. लेकिन फिर nausea, vomiting, needing to go to the bathroom to urinate more, breast tenderness, that's different for everyone.
you know, Okay. and or some women they tolerate those symptoms very well. उनको पता भी नहीं होता, like बहुत healthy pregnancy होती है, कोई symptoms नहीं होते. और दूसरे एंड पे कोई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो हम एडमिट करते हैं रिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि उनको इतनी उल्टियाँ आती हैं, कुछ खा नहीं सकती, कुछ पी भी नहीं सकती. तो ऐसे एक्सट्रीम भी सिम्टम्स हो सकते हैं. Okay. You know, when I was pregnant, I had no sign or symptoms. Yeah. Nobody believes that I'm pregnant, including myself. Or no vomiting, no nausea, no drowsiness. Only one thing I had feel, मुझे ना मेरा ज़बान का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया था. Oh, interesting. हाँ, तो मुझे टेस्ट किसी चीज़ में नहीं आता था. तो मैं अपने लॉ से कहती थी पता नहीं क्यों खाने में वो मज़ा नहीं है जैसे आता है. और वो फिर पूरे महीने मेरे मतलब 9 मंथ्स तक मेरे यही प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा ज़बान का जो टेस्ट था ना वो बिल्कुल चेंज हो गया था, कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया था वो. तो ऐसा भी होता है कि आपको कोई साइन और सिम्टम्स नहीं होते लेकिन आप प्रेग्नेंट होते हो. Absolutely. हाँ. इनफैक्ट मेरे ख्याल में मैंने कोई टीवी शोज भी ऐसे सुने हुए हैं जो औरतें आती हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एंड इट्स एक्चुअली लेबर पेन एंड दे हैव अ बेबी. Oh really? Yeah, there's TV shows out there Oh like that wow. too. So it's totally possible. Yeah. अच्छा मुझे बताओ, what one piece of advice would you to a woman who is trying to get pregnant? You know, I think I would say, aside from going to the physician to make sure that your health is optimized, one thing that a lot of people don't know is कि आपको prenatal vitamins शुरू करनी चाहिए 3 months before you get pregnant. Okay. A lot of people don't know this. लेकिन prenatal vitamins में आप फिर आपकी health थोड़ी सी optimize हो जाती है. Specifically though उनमें होती है folic acid. Okay. Or folic acid, you can find it in like leafy vegetables and other parts of your meal as well. Right. Like in folic acid is specifically necessary for the spinal cord Okay. and the development of that in the baby. Okay. And there's some people who even need a higher dose of this type of medication. Okay. So I would say if I was just to give you, you know, one piece of advice, top advice is to prepare for the pregnancy. Okay. क्योंकि lots of people, you know, उनकी शादियां होती हैं और फिर वो like they're trying right away and they don't really think about the fact that this is, you know, things can go wrong in pregnancy. Right. But why aren't we setting our bodies up for success from the beginning? Yeah. And really try and make sure that you have like 3 months of that vitamin on board before you start trying to get pregnant. True, very true. Okay, you know, I'm talking about especially these days COVID-19. You know, मुझे नहीं पता कि अब ये कब जाएगा. You know, every day we have a new stories कि अब ये हो गया. अभी देखो एकदम ओंटारियो में 300 तक लेस 300 हो गए थे पेशेंट, लेकिन अब डे बाय डे दोबारा इंक्रीज हो रहे हैं. तो अब ये कोविड-19 जैसे है, ठीक है. तो हाउ डज कोविड-19 अफेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द अनबॉर्न चाइल्ड? Okay, so first of all, pregnancy जो होती है ये ज़्यादा हाई रिस्क स्टेट नहीं है कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाएगा. ओके. लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहन रहे, डिस्टेंस नहीं रख रहे, all those, you know, public health measures, वैक्सीन नहीं है. सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. Yeah, Exactly, yeah. without precautions, yeah. Exactly. So अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो रिस्क फिर ज़्यादा हाई है कि वो सिवियर इन्फेक्शन होगा. और ये बेबी पे भी इफेक्ट होएगा? Yes. So the risk is more for like preterm birth. और वो भी रिस्क इसीलिए है कि अगर औरत like the patient, मेरी जो पेशेंट वो वुमन ही होती है ना, अगर उनका इन्फेक्शन इतना सिवियर है कि वो आईसीयू में है, उनकी ब्रीदिंग सही नहीं हो रही या कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम फिर कहते हैं कि इस पेशेंट के लिए डिलीवरी अच्छी होगी उनकी लाइफ बचाने के लिए, देन इट्स मोर अ हाई रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ. वैसे with the information we have right now, COVID-19 does not cause anomalies in the baby, like no, and it doesn't have an increased risk of stillbirth or miscarriage from the information we have right now. It's more about the risk in pregnancy with higher severity of illness and ICU admission. Oh dear.
तो okay, would you recommend the COVID-19 vaccination after their other vaccination recommend for pregnant women? Yeah, so 100% I would say please go get your COVID-19 vaccine. आप pregnant भी हैं, pregnant के होने बारे में सोच रही हैं, या you're already delivered, any part of this process, please get your vaccination. And if you're eligible for a third dose, go ahead and get that. और इस season में ये भी important है कि आप flu vaccine भी लें. We offer it to all pregnant women and it is also safe in pregnancy. प्रेगनेंसी के हवाले से ना कुछ मिथ्स भी हैं जो वो नस्ल दर नस्ल ख़ानदानों में चली आती हैं ना, कि अब जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ठीक है उनकी बात माननी चाहिए बिल्कुल, लेकिन बाज़ दफ़ा इतना केस ख़राब हो जाता है ना, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, घर में ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तुम ऐसे कर लो, तुम ये खा लो. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है? What do you think? I think nutrition is very important. और ये जो बुजुर्गों की advice है, I think they have lots of experience. They have a whole life that they've lived, True. So I respect them. I think that they have a lot of wisdom to offer. लेकिन फिर medical expert भी थोड़े से उनको भी पता होता है, right? पता होता है, exactly. Yeah. तो nutrition के बारे में I think the most important thing is to have a balanced diet. और कोई औरतें ये भी समझती हैं कि I'm eating for two now. I'm pregnant, I'm eating for two. And that's actually not the mentality that I want. Typically जो हम कहते हैं कि normal weight वाली जो patients होते हैं, like BMI 18 to 25, उनके जो pregnancy में weight gain होना चाहिए, it's only 25 to 35 pounds. Okay. वैसे 30 to 40% लोग जो होते हैं उनकी weight ज़्यादा बढ़ता है. And then you set yourself up for more complications, bigger baby, higher risk of C-section. Yeah. तो जब nutrition के बारे में हम सोचते हैं तो I want you to think about fruits, vegetables, all the stuff that we tell everybody all the time, for what's healthy. But you only need, in the second and third trimester, only need an extra 400 calories per day. It's not a lot. Okay. It's not a lot. मैंने देखा है कि जैसे गुड न्यूज़ होती है तो जो घर की बड़ी खातूनें होती हैं, हमारे बुजुर्ग जैसे होते हैं, हमारी अम्मी हो गई, दादी नानी हो गई, तो कहते हैं बस हर वक्त खाते रहो, हर वक्त खाते रहो. मैंने लिटरली ऐसे देखा है और वो इतना खाती हैं और इतना वेट गेन कर लेती है ना, लेकिन जब बेबी डिलीवर होता है तो वो 5 पाउंड ऐसा ही होता है, बहुत छोटा सा होता है. तो हम कहते हैं कहाँ गया तुम्हारा खाना पीना, लेकिन उसको लगता है, बेबी को नहीं लगता. तो we should eat healthy food during pregnancy, eat right? Healthy. Yeah. Eat healthy. और फिर that's you brought up such a good point कि जब उनको फिर weight चढ़ता है ना, बेबी को कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं जा रही, वो सिर्फ उतना ले रहे हैं जिनको जो उनको चाहिए होता है, राइट? तो फिर उन पेशेंट्स को the woman, the mom, उनको हायर रिस्क हो जाता है ओबेसिटी का, हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का. And it's not worth it because you don't need to do that. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है अगर आप समटाइम या डायबिटीज़ भी करीब, क्योंकि मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है प्रेगनेंसी से पहले शी वाज कम्प्लीटली हेल्दी, लेकिन जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी में आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उनको फिर डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर उनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए. और ये कैसे होती हैं, ब्लड प्रेशर कैसे होता है, मतलब कोई टेंशन से होता है? क्योंकि मैंने देखा कि जब प्रेग्नेंट वीमेन होती है ना तो उसके मूड्स भी, स्विंग मूड्स जो होते हैं बहुत चेंज होते हैं, राइट? तो उसको कोई सपोर्ट करने वाला, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है. अच्छा, मेरी जो छोटी बहन प्रेग्नेंट हुई थी तो शी वॉज क्राई ऑल टाइम. आई सेड व्हाई आर यू क्राई? कहती आई डोंट नो, just how I feel. तो लेकिन उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें चली गई थी, जैसे नहीं कहते एक डिप्रेशन में चली गई थी वो, पता नहीं क्या होगा क्या. मैंने कहा तुम ऐसी बातें क्यों करती हो ना, तो कहती नहीं तुम्हें नहीं पता. हालांकि उससे पहले मेरे बेबीज हो गए थे तो मैं उसको श्योर करती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम हैप्पी रहोगी, तुम्हारा बेबी भी हेल्दी रहेगा. लेकिन वही कि मूड्स जो हैं आपके चेंज होते हैं, हार्मोन्स आपके चेंज होते हैं, फिर आपके मूड्स भी चेंज होते हैं, राइट? तो ये कितना इफेक्ट करता है और उसमें हमें एक प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरह की हेल्प चाहिए होती है? मेंटली और मेंटली हेल्थ के लिहाज से बात कर रहे हैं. For mental health. So first of all, stress is really important to kind of maintain. वैसे stress भी एक risk factor है miscarriage के लिए.
I mean, एक दो दिन के extra work और जो भी है, that's not a problem. लेकिन chronic जो stress होता है. Mental health वाला support, I think just recognizing कि अगर इनके hormones हैं या वो कोई mood में हैं, depression में हैं, तो कई लोग फिर उनकी patience भी कम हो जाती है ना उन लोगों के साथ. So just remember, like, this person is pregnant, their body is going through so many changes. It's not going to be like that all the time. So you have to be patient with someone who's going through that too. And just जैसे आपने अपनी बहन के साथ किया, just support her and say, I'm here for you, you know, whatever you need, I will help you, not overeating, but other things. Yeah. And then, you know, normalizing it too. क्योंकि हम, I think, कभी हम कहते हैं कि, you know, you shouldn't feel this way, or you shouldn't do this, you shouldn't do that. Just say, it's normal. It's okay that you feel this way. Right. And especially after someone gives birth, it's very normal, up to 2 weeks, very normal for people to actually feel really blue and depressed. I call it postpartum blues. और मैं सारे अपने patients को कहती हूँ कि हमारी जो society है, वो कहती है, like, congratulations, you had a baby, you must be so happy. But actually it's really stressful. Yeah, and especially exactly. if it's the first baby, right? Yeah. So it's normal to feel down. And अगर आपकी depression postpartum, like depression ban gayi hai, so there's treatment for that. And I don't want people to think that they're alone in it, first and foremost, you know. So agar hum, like jaise hum baat kar rahe hain, hopefully, you know, all the viewers are listening to this and recognizing that it is something that happens. And the first thing that we can do is just talk about it and say, like, this is okay, let's figure it out together. It's a normal thing. You're not alone. Yeah, and we're here to help you. Yeah. That I think, honestly, it goes a long way, because connection makes a huge difference for mental health. True, very true. अच्छा, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी लेडीज़ को भी देखा है जो उसको डिजीज़ समझती हैं. वो हर वक्त जो है ना उदास चेहरा और अजीब से हुलिये में. तो मेरी अम्मा कहती हैं कि बेटा ये कोई बीमारी नहीं है, ये ब्लेसिंग है, इसको एंजॉय करो. ना कि ये है कि हमेशा हाय मैं तो बहुत मोटी हो गई, अब मैं नो सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती, मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो रहा है, मुझ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा. तो ये चीज़ें भी औरतों पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ये चीज़ें ना. और समटाइम मुझे लगता है औरतें जो है ना इस चीज़ को लाइक अ डिजीज़ समझती हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई. तो आप क्या कहोगे कि क्या उस वक्त हमें क्या करना चाहिए उन लेडीज़ के साथ जो वाकई समझें कि ये तो बीमारी है, ये तो मतलब इसको मैंने देखा है कि लेडीज़ जो है इसको एंजॉय नहीं करती. हालांकि मैंने अपनी हर प्रेगनेंसी को बहुत एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं होता था ना तो जाना. और मैंने अपने मियाँ से ना अपने नखरे भी बड़े उठवाए. That's my plan too. Right? Yeah. I'm carrying the child, you're doing everything else. क्या एग्जैक्टली ट्रू. मैं कहती थी भाई ये एक दफ़ा मिलेगा ना चांस मुझे प्रेग्नेंट होने का, तो मैं इसको अवेल करूँ. मैंने इतने नखरे, अपने यहाँ खाने को दिल कर रहा है, उधर ले चले, ये करें. तो इमरान कहते तुम्हारा जो है हर वक्त बाहर जाने को दिल करता है. मतलब बहुत इंजॉय किया मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा. तो मतलब जो मेरे घर के बुजुर्ग थे तो वो कहते थे तुम्हें कुछ फील नहीं होता. तो वैसे, और सीरियसली बिलीव और नॉट, आई वॉज प्रेगनेंट और मेरे भाई की मेहंदी थी और मैंने उसमें पॉइंटेड हील पहन के डांस किया. Oh wow. और Good for मुझे you. नहीं, बट एट दैट टाइम आई डोंट नो आई वाज प्रेग्नेंट. बस मुझे ये होता कि मेरी ज़बान का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, अदरवाइज नो साइंस, नो सिम्टम्स, नथिंग. और जब मैं कनाडा वापस आई तो मैंने कहा अच्छा इमरान कि तुम इतनी लेजी क्यों, ऐसे पता नहीं क्यों अजीब सी तबीयत हो रही है, शायद शादी में से आई हूँ ये वो. खैर हम डॉक्टर के पास गए तो उसने बताया कि यू नो कांग्रेचुलेशंस आई एम प्रेग्नेंट. रियली? और उसके बाद में सोचूं हाँ मैंने हीले पहन के डांस किया, मैं तो ऐसा घूम रही थी. मैंने जब वो मूवी देखी ना, वीडियो देखी अपने भाई की शादी की, एट दैट टाइम आई वाज शॉक्ड. व्हाट हैव आई डन? ये मैंने किया क्या? लेकिन वो ना आपको इस वक्त पता नहीं होता. और मेरी माशाल्लाह जो सेकंड बेबी है, जो मेरे मतलब प्रेग्नेंट थी मैं उस वक्त, वो उतनी ही एक्टिव है. Oh, good. Just like her mom. Exactly. She's like same as me. और वो हर जगह, उसको रात के 2 बजे बोलो ना चलो यहाँ चलो, she's ready. चलो हाँ चलो. और मेरी जो बड़ी बेटी है ना वो थोड़ी सी मतलब इतना सोशलाइजिंग नहीं करती. वो उसकी चंद फ्रेंड्स हैं, वो उन्हीं के साथ ज़्यादा खुश रहती है.
तो आई सेड कि यार जो मैं थिंकिंग करती हूँ ना वो मेरी बेबी पे भी इफेक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, I think so, है yeah. ना. Why ये not? मैंने सोच मतलब मेरा ये प्रैक्टिकल खुद का है कि जो आपकी थॉट्स हो ना वो आपकी बेबी पे भी इफेक्टेड होती है, राइट. अच्छा, जब हम लोग जो हमारे घर की माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, हमारी दादी नानी और हमारी अम्मी, तो वो कहते जो भी जिसका रिलीजन है वो प्रेगनेंसी है तो कहते हैं उसमें आप नमाज़ें कुरान या जिस जो आपके बिलीव्स हैं आप उसको भी कंटिन्यू रखें तो उससे भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा फील करते हो, हेल्थी फील करते हो. बीइंग अ मुस्लिम मैं ये बात कर रही हूँ Yeah. कि आप कुरान पढ़ें नमाज़ें पढ़ें तो उससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता I support that है ना. या 100%. ये Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं लेडीज़ को, राइट. Yeah, I mean, infections के लिए हम टेस्ट करते हैं पहले. Like जब आप गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा होगा कि we're going to do blood ब्लड test, urine टेस्ट, test, all this stuff. यहाँ पे यूरिन टेस्ट का तो फ़ौरन बता देते हैं लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं होता. फिर वो कहते हैं कि आप ज़रा ब्लड टेस्ट करवा लो तो उससे और कंफर्म हो जाएगा, Yes, राइट. yeah, और अलग-अलग चीज़ें भी देख रहे होते हैं in the two tests. या So things like sexually transmitted infections जो होते हैं, like gonorrhea, chlamydia, hepatitis, HIV, Hep B specifically, वो हम सब pregnant women के test करते हैं पहले. करते रहे, एग्जैक्टली. Yeah, because that will affect your pregnancy for sure too. और फिर infections जो होते हैं वो risk भी होता है preterm birth का. ओके. So, you know, if someone comes in to my obstetrical triage and they say, I'm feeling like I'm in labor, feeling contractions, फिर मैं भी उनके test करती हूँ. Not necessarily for these things that have been done, but then like yeast infection, bacterial vaginosis, or a urinary tract infection. क्योंकि mom की body जब stress में होती है, तो फिर वो कहती है कि I need to take care of this body. So then this one gets affected. So then we test for those things. आप जब प्रेग्नेंट हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें अपनी हेल्थ के लिहाज से, अपनी बेबी के हेल्थ के लिहाज से, ताकि आने वाला भी बेबी हेल्दी और जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो भी हेल्दी हो, राइट. Absolutely. ओके. अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझते हो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, कौन सा फूड, क्योंकि यू नो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो ये होते हैं ना चावल नहीं खाओ, दूध नहीं पियो, रोटी ना खाओ, तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह का हमें जो है वो अपना डाइट चार्ट बनाना चाहिए जो बेबी भी हेल्दी हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब औरतें बहुत ज़्यादा खा लेती है ना तो बेबी बहुत हेल्दी हो जाता है, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, फिर उसका सी सेक्शन होता है. अच्छा, सी सेक्शन से मुझे एक बात याद आई, आजकल और बच्चियाँ जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर नहीं कर रही हैं, सी सेक्शन की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो व्हाट डू यू थिंक? I don't like that personally. और हमारे भी ऐसे requests आते हैं. अगर किसी का like you know trauma हो या कोई और reason हो जो वो कहती हैं कि this would be really terrifying for me, then okay. There are lots of reasons why I say okay, let's do that. लेकिन वैसे C-section I think लोगों को ये realization नहीं होती कि वो कितनी major surgery होती है. Okay, and we do it routinely, right? Like I do 5, 10 C-sections a day, depending on how busy we are. We can do a lot of them. But C-sections, हम skin को काटते हैं, muscles को काटते हैं, जो आपकी पेट को strength देती है, उस tissue को काटते हैं, फिर uterus पे पहुंचते हैं. And then we take this baby out, right? और and then we have to put it all back together. और and this is baby number 1. कोई लोगों को 3-4 बजे पैदा करने होते हैं तो फिर और भी scar tissue होता है. And with every subsequent surgery that you have, especially major open surgery like a C-section, you have higher risk of injury to the bladder, injury to the bowel. So if someone can have a vaginal delivery, I think that that's the best way to go. Least complications, a shorter recovery time. क्योंकि फिर इतनी surgery के साथ आपके infection का risk higher होता है, bleeding का risk higher होता है, risk of injury to those structures, like I said, bowel, bladder. So I always try to recommend vaginal delivery for people who it's appropriate for. Of course, some people, they're going to need a C-section from the start. There's reasons for that. And it is totally safe, and we do the surgery even on multiple times for one person. But it is much lower risk to have a vaginal delivery. And I think वो कहते हैं कि, you know, vaginal delivery होगी तो मेरे body, it'll change. And it will change. But it is,
I hope, viewed as something that's beautiful, something that you did, you know, to start a family, and it should be respected, that Exactly, change. we should respect. और second thing is that कि आप ये भी तो देखें कि एक क्या चीज़ आपको मिल रही है, Yeah, माँ बनना, बच्चे का लाइफ दुनिया आपकी ज़िंदगी में आना, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग कोई चीज़ नहीं हो सकती. तो yeah, हम कुछ खाते हैं तो कुछ पाते भी तो है ना, और फिर एज अ बीइंग अ मदर हम कितना रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. yes, मैंने देखा I है कि hope जब so. आप है ना, बैचलर लाइफ एक डिफरेंट लाइफ, शादी होना, रिस्पॉन्सिबल होना, और माँ बनना, ओ माय गॉड, दिस इज अ सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. Yeah, तो इसको एंजॉय करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आप एक चीज़, ठीक है बॉडीज़ में चेंज आते हैं आपके आपकी, वो नहीं रहता, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करें या हम अच्छी डाइट लें तो हम उसको कवर भी कर सकते हैं, राइट? absolutely, है ना? तो सही. absolutely. तो बस आज का हमारा ये प्रोग्राम था, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और स्पेशली उन माँओं के लिए जो या तो माएँ बन रही हैं या माएँ बनना चाहती हैं, तो उनके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हमारे साथ, हम आपके साथ और आप हमारे साथ शेयर करें. थैंक यू अरीबा, थैंक यू You're सो welcome. मच फॉर कमिंग हेयर, और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बुलाएंगे. और Absolutely. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मिलके, Thank बहुत you. अच्छा लगा. चलें फिर हम इजाज़त लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.